हाँ पर लगा था 4 दिन तो हो गए ना घर पे। ठीक है, मैं भी लेने वाली हूँ 4 दिन में, मैं भी घर में रहूंगी। Let us wait for 2 minutes and let others join, okay? कल का मैं सोच रही हूँ मैं शाम Hi students, कैसे हैं आप लोग? My name is. Just a minute. Hold on. Okay. Hello. हाँ जी मैम. अभी क्लास हुई है मेरी स्टार्ट मैम. फोर्थ सैम को भी करना है ना? Hi everyone. Sorry for the delay and interrupt. Okay, my name is Ifat. I think हम लोगों ने पहले कभी कोई क्लास नहीं लिया है. I have never conducted a class before. So I will be taking your subject, which is business laws. Give me just 1 minute. Okay, so we have only 6 people here in the class. How many people are there in the class? इतने ही बच्चे आते हैं क्लास के लिए? Aditya, Bhanu, Jigyasa, Muskan, Prachi, Prince. We have only 6 students in the class today. And what about the others? कोई बताएगा? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? I hope I am audible to everybody of you. I am talking with you guys. Yes, ma'am. You are audible. Yes, ma'am. Okay, great.
I think boys को नहीं समझ आई मेरी बात. Only girls have acknowledged that they are listening to me. Boys are not either listening or they are not present in the class mentally. So आप सबको कल introduction तो group में हो ही गया था मेरा, and I have told you that my name is Ifat and I'm going to conduct your business. या आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको डिस्कस करने के लिए लगता है कि कर सकते हो या करना चाहिए, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल विथ यू गाइस फॉर दैट. ठीक है, नाउ एवरीबडी ऑफ यू हैज माय नंबर इन द ग्रुप and can discuss with me whatever issues you guys are facing, whether it is related to my subject या अगर कुछ और भी related कहीं और से आपको लगता है, कुछ आप चाह रहे हो, कोई सजेशन है, कुछ भी है, so I am always there to listen to you guys. ठीक है, although your class coordinator faculty में जो है मैम वो पिंकी मैम है, you can always connect with her also directly, but I am available with you people too. So अभी जो मैं आपको स्क्रीन मेरा दिख रहा है, what screen you guys can see, somebody can tell me? Yes ma'am, दिख रहा है. Aditya, what are you seeing, what are you able to see? Law of contract. Okay, so first of all, let me not go to that, and I will discuss with you guys the syllabus of ours. Wait a moment. I'm going to share with you the screen of syllabus first. Syllabus दिख रहा है अभी आप सभी को? Yes ma'am. Ma'am. क्लियर दिख रहा है या मैं थोड़ा और स्क्रीन इसका बड़ा करती हूँ? आई होप अभी सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा. ठीक है, सो इसमें हमारे देखिए 4 यूनिट्स आर देयर एंड वी विल बी कवरिंग द 4 यूनिट्स एज पर आवर एकेडमिक कैलेंडर व्हिच इज बीइंग असाइन्ड टू अस फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी. आप लोगों को इंग्लिश क्लियरली समझ आती है या मैं दोनों लैंग्वेज में बात करती हूँ? वैसे आई स्पीक इन हिंदी ऑल्सो एंड इंग्लिश एज वेल. गिव मी 1 मिनट. हेलो, यस, हाँ जी बोलिए. हाँ जी पदम, मेरा भी क्लास है बेटा. बाय 3 o'clock I'll send it to you. I'll send it to you by 3. No problem. Okay, so I speak English and Hindi. कोई ऐसा पर्सन है जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी चीज में समझाऊं तो उसको समझ नहीं आएगा अगर मैं इंग्लिश में कुछ बोलूं तो? Is there anybody? Everybody can understand English? Say Yes ma'am, we all are comfortable. Okay, great. So I will be using both the languages, English and Hindi, a mix of that, so that you guys can understand everything, all the topics clearly. So we will start today with law of contract, जो आपको unit 1 में दिख रहा है, and in the unit 1 we'll continue law of contract और उसमें क्या valid contract के essentials होते हैं, offer क्या होता है, acceptance क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेसिकली हम सारा फर्स्ट यूनिट में कवर कर लेंगे. काजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल द एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम बेसिकली यूनिट 1 में कवर करेंगे. ठीक है, unit 2 then is again contract of guarantee. It also becomes like guarantee, another thing which comes into the you can say part of our this particular subject, which is part of unit 2. Here we will be covering that in that particular unit. Cost contract of indemnity क्या होता है, I bond, indemnity bond, basically हमें कई बार बहुत बार कुछ देना होता है कहीं पे, which we can get through the help of court or something. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज क्या होती हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स क्या होते हैं, ये सब हमने यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ है एंटायर सिलेबस को, विच इज नॉट वेरी बिग एंड वेरी डिफिकल्ट. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज यू गाइज आर ऑलरेडी डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स. जो आपका डिग्री है, दिस इज अ मैनेजमेंट कोर्स एंड ऑब्वियसली गाइज आर बेटर देन द पीपल हु डू BA और BCom और समथिंग एल्स लाइक दैट. तो आप लोगों का एक IQ लेवल उनसे बेटर है. सो फॉर यू गाइज दीज 4 यूनिट्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. तो हम लोग बिजनेस लॉज, जैसे हमने बोला है, सब्जेक्ट का नेम है बिजनेस लॉज. So that particular law which is related to business and applicable on business
is what we are going to cover. हम पूरा लॉ नहीं पढ़ने वाले हैं. It is not the entire Indian Constitution of India या पूरा entire लॉ क्या कहता है, हर चीज के बारे में हम वो नहीं डिस्कस करेंगे. इस सब्जेक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं उन्हीं को डिस्कस करें. और बिजनेस में जनरली ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये अग्रीमेंट्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, उन्हीं से रिलेटेड हमारे सिलेबस में कवरेज दिया गया है. क्लियर है? So first topic was law of contract. As you saw from unit 1, first topic is law of contract. मैं आपको थोड़ा सा अपना आज अपने बारे में थोड़ा सा ये ओवरव्यू भी दे देती हूँ कि हाउ आई वर्क और हाउ यू विल गेट द सिलेबस एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ आई डोंट नो व्हाट अदर फैकल्टीज आर डूइंग एंड हाउ यू गेट योर like notes and all those things. एक तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोगों को दूंगी if you people want. I have one channel, YouTube चैनल है मेरा अपना, जिसमें कि आपको वहाँ पर सभी तरह के लेक्चर्स मिल जाएंगे, नॉट ओनली योर्स, बट मैं लेक्चर में वहाँ पर डाल दूंगी कि दिस इज फॉर BBA 3 बिजनेस लॉ, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि ये हमारा लेक्चर होगा. ठीक है? वहाँ पर और भी कोर्सेज के लेक्चर्स हैं, वहाँ पर CSC के भी हैं, BBA फर्स्ट सेम के भी हैं, और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी वहाँ पर कुछ पर्सनल वीडियोज भी हैं जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं. अपने से रिलेवेंट जो भी आपके लेक्चर से रिलेटेड वीडियोस हैं आप वो सिर्फ देखें और रेफर करें इफ यू वांट. और मैं आपको अपने YouTube चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको कोई एक वीडियो में भी आज की ही वीडियो भेज दूंगी, और उस वीडियो के लिंक पर आप जाके उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो के लिए लिंक की जरूरत ना पड़े. whenever I will, and you also will click on the notification so that whenever I upload any new video for your lecture आपको वो मिल जाए. दिस इज वन सोर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट इन सब वीडियोस का लिंक आप मुझसे अदरवाइज भी ले सकते हैं, बट अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लिंक की जरूरत हमेशा के लिए नहीं पड़ेगी, जिससे आपको सभी उस चैनल पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. ठीक है? पुरानी नई जो भी हैं. तो अब से जो आपकी रहेंगी वीडियोस फ्रॉम लेक्चर 1, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर. Apart from that, there are like 4 assignments as the other subjects you already have studied. आप लोग 3 सेमेस्टर्स क्लियर कर चुके हैं, तो आपको पैटर्न जो यूनिवर्सिटी का है वो ऑलरेडी क्लियर तो है ही. So I'll give you 4 assignments also. Will give you some date, और मैं आपको कोशिश करूंगी कि 1 हफ्ते का टाइम आपको एक असाइनमेंट में दूं, so that you are making it, preparing it in a nice manner with your handwriting, and you will either be uploading it on the Google Drive, the link I will share with you guys, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं वो. और जिस टाइम फ्रेम में मैं आपको असाइनमेंट्स लेने की कोशिश करूंगी, आपको बताऊंगी कि ओके यू हैव टू सबमिट इट बाय 1st of February, whatever date, you will have to submit those assignments by that date or time only. मैं ये नहीं सुनूंगी कि मेरा अभी नहीं बन पाया या कुछ हो गया था या कुछ हो गया था. और अगर आपके पास कुछ ऐसा इशू या प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इन पर्सन चैट करिए व्हाट्सएप पे, या मुझे कॉल करके पूछिए, बताइए, तब मैं आपको अलाउ करूंगी, तो ही आपका असाइनमेंट डेट से बाद में सबमिट होगा. बट अगर किसी के साथ कुछ भी इशू, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी एंड शेयर योर प्रॉब्लम. मैं रिलैक्सेशन जरूर दूंगी, बट रिलैक्सेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मिसयूज करेंगे. ठीक है? उसके अलावा MCQs होंगे. मैं कोशिश करूंगी कि आपकी एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही आपका एक MCQ लूं. अगर नहीं भी कंप्लीट होती है तो सिलेबस के साथ मैं आपको MCQ का एटलीस्ट एक दिन पहले का बता दूंगी आपको कि आपका टेस्ट कब होगा. MCQs वुड बी लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि आपके क्वेश्चन होते हैं और ऑप्शंस होते हैं. यू हैव टू क्लिक इट. जब आप सबमिट कर देंगे अपना क्वेश्चन पेपर, आपको आपका स्कोर वहां पर विजिबल हो जाएगा. यू कैन व्यू योर स्कोर कि मेरे 10 में से 3 मार्क्स आए हैं, या 10 आए हैं, या 9 आए हैं, व्हाटएवर आए हैं. इस तरह से हमारे पास हम लोग कंडक्ट करेंगे एंटायर सेमेस्टर में. देयर वुड बी 6 MCQs. क्लियर है? 6 MCQs कंडक्ट करूंगी मैं, विच कैन बी लाइक 1 यूनिट फॉर ईच. 4 हो जाएंगे, 2 फिर दोबारा करके एक करेंगे हम, तो 5 और हो जाएंगे, और 6 में भी फॉर द एंटायर सिलेबस इट कैन बी, और व्हाटएवर वे वी विल सी किस तरह से चलता है हमारा सिलेबस, कितना फास्ट आप लोग ग्रैस्प करते हैं. अगर आपको लगे मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं. अगर आपको लगे बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं और आप बहुत अच्छे क्विक लर्नर हैं, मुझे थोड़ा फास्ट होना चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं. मैं आपके हिसाब से चलना चाहूंगी, बट विद इन टाइम फ्रेम ऑफ द सेमेस्टर ऑल दिस सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड. दैट ऑल्सो आई हैव टू सी. ठीक है? बट अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोगों के हिसाब से मैं चलना चाहूंगी, सो दैट यू गाइज शुड बी कंफर्टेबल. क्लियर है? ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत आपको नहीं है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. आपको सिर्फ समझना है कि क्या चीज क्या है, क्या टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है. आप खुद भी लिख सकते हैं उसके बारे में फिर.
ठीक है, बट सिंस दिस इज रिलेटेड टू लॉ, सो वॉट एवर इज रिटन इन लॉ हैज टू बी रिटन बाय यू गाइज इन दी क्वेश्चन पेपर ऑल्सो. इट्स नॉट दैट कि आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख रहे हैं, बट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दी बेसिक law against the word which we are studying or any topic which we are studying. क्लियर है? किसी को इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है और कुछ होता है कि मैम ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे? नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर सकती हूँ. नोट्स के लिए मैं क्लासरूम लिंक भी आप लोगों का क्रिएट करूंगी, वहां पर भी मैं सारे लिंक्स अपलोड करती रहूंगी. सो एज फार एज योर नोट्स आर कंसर्न, एज फार एज योर MCQs and assignments and everything is concerned, you will get in time all the links and everything in the group. फिर भी किसी को कुछ इशू तो मुझसे पूछ सकते हैं, या पहले आप ग्रुप में ढूंढ लें वो चीज. आई होप एवरीबडी इज देयर इन द ग्रुप नाउ. Try your friends, call them, try to ask them to attend the classes, more and more classes. I would not want कि इस तरह से कि 10-11 बच्चे आ रहे हैं and there are like 40 students in the class. क्लियर है? अटेंडेंस के बेस पे, असाइनमेंट्स के बेस पे, MCQs के स्कोर के बेस पर आपके इंटरनल्स लगेंगे, और वो इंटरनल्स चेंज नहीं होंगे एंड में. अगर किसी ने असाइनमेंट्स नहीं दिए तो असाइनमेंट्स के मार्क्स में 0 ही लगाकर भेजूंगी. अगर किसी ने MCQs नहीं दिए हैं तो MCQs के मार्क्स लगा के मैं उसको पास नहीं करूंगी इंटरनल में एंड में. जिसका मतलब ये है कि जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें मार्क्स मिलेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, और किसी और को भी हेल्प नहीं करने दूंगी, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में. So you have to be very sincere in my subject and in every subject basically. Clear है? कुछ किसी को issue है इसके अलावा बेटा तो मुझे बताओ. When I am telling you that I am available for you guys to help, I would expect from you guys also to take care of take active role in your syllabus, in your everything. I'm not saying कि आप सिर्फ पढ़ते रहो all the time, enjoy मत करो, enjoy your life, but when it is about your work, पहले काम कर लो, उसके बाद life enjoy करना. ठीक है? So moving on to the subject now. Our first topic is law of contract. तो जैसे मैंने बिजनेस लॉ आपको सब्जेक्ट जो हमारा है उसमें 2 वर्ड्स है, बिजनेस एंड लॉ. बिजनेस इज एनी थिंग which an organization does is a business. Business क्या होता है? Any organization which is doing some work. It can be manufacturing, it can be sale, purchase. किसी भी तरह का बिजनेस कोई भी इंसान कर सकता है. आप सपोज आप मैं, हम में से कोई भी पर्सन, टुडे वी स्टार्ट अ बिजनेस, तो उसका कोई एक नेचर होगा, या तो हम कोई चीज बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन होगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, या फिर हम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म होगी जहां पर कि सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे होंगे तो वो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. या इट कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम सिर्फ सेल मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन रख के प्रोडक्ट्स को हाई वॉल्यूम में खरीदेंगे और फिर बेचेंगे, जो कि Amazon करता है. इट इज ऑल्सो व्हाट इज दैट बिजनेस इज बेसिकली नथिंग बट सेल एंड परचेज. वो प्रोडक्ट को वो परचेज करते हैं और आगे अपने प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, सो सेल परचेज भी कर सकते हैं. सो इट कैन बी any form or any work which is being identified or chosen by the organization to be done is business. और उस बिजनेस को करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, और उन सब लॉ के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट करी हैं, एवरी बिजनेस हैज टू फॉलो दैट लॉ एंड दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉ. क्लियर है? सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? वो सारी चीजें जो भी लॉफुली क्रिएटेड है गवर्नमेंट से कि तुम ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे, ये चीज कर सकते हो, ये चीज नहीं कर सकते हो. एक्सप्लॉयटेशन नाउ, ये बिजनेस लॉ बना क्यों है? ताकि कोई एक पर्सन किसी दूसरे को एक्सप्लॉयट ना कर सके. हर किसी के पास अपने राइट्स हैं, और उन रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही हर कोई अपना बिजनेस ऑपरेट करेगा मार्केट में. इवन इफ आई वुड टुडे, सपोज इफ आई स्टार्ट अ बिजनेस, मैं एक कंपनी स्टार्ट करती हूँ, मुझे 25 लोगों की जरूरत है, या 30 पीपल आई रियली वांट टू हायर. सो आई कैन नॉट हायर 30 पीपल एंड टेल देम दैट यू विल बी वर्किंग फॉर मी फॉर 15 आवर्स अ डे, कि तुम मेरे साथ 15 दिन काम करोगे, अग्रीमेंट साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, अग्री कर रहे हो इस चीज के लिए, ठीक है, संडे का ऑफ नहीं मिलेगा या कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ना, ऑल दोस थिंग्स. सो दीज थिंग्स कैन नॉट हैपन. देयर इज अ लॉ टू इट कि तुम कितने घंटे मैक्सिमम एक आदमी से एक दिन में कितना काम करा सकते हो. मैंडेटरली यू विल हैव टू गिव वीकली 1 ऑफ. ये सब चीजें मैं आपको जनरल बता रही हूँ, जो कि लॉ में लिखी हुई चीजें हैं, इसीलिए कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. तो अगर आपने बिजनेस लॉ, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको भी लॉ के बारे में पता हो,
है ना, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या अग्रीमेंट होता है। और जब नहीं पता होगा तो आपको कोई फ्यूचर में एक्सप्लॉइट कर सकता है, पता होगा तो कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा आपको। आप बोलोगे नहीं, दिस इज नॉट लॉ, दिस इज नॉट एज पर द लॉ, दिस इज नॉट करेक्ट एज पर द लॉ, आई विल नॉट फॉलो दिस, आई विल नॉट साइन हियर, या वॉट एवर। और एटलीस्ट यू विल नो द वैल्यू ऑफ योर सिग्नेचर बिफोर साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप ये सब चीजें पढ़ोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की समझ आ गई कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, सो दैट your exploitation cannot be done, या फिर you will also not be exploiting somebody else। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करो तो आप भी किसी को एक्सप्लॉइट ना करो, knowingly unknowingly, या अगर आप एम्प्लॉय होते हो तो आपको भी कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। क्लियर है? नाउ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेशन हम कॉन्ट्रैक्ट की अगर पढ़े, एग्रीमेंट, an agreement between private parties creating mutual obligations enforceable by law। whenever it is mentioned, the word is mentioned enforceable by law, इसका क्या मतलब है enforceable by law? anybody understands this? can tell me enforceable by law का क्या मतलब है? anybody? 11 बच्चों में से किसी को नहीं पता enforceable by law क्या होता है बेटा? एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि अगर कोई चीज फॉलो नहीं हुई और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, का मतलब मैं कोर्ट जा सकती हूँ उसके अगेंस्ट। मतलब फैसला करवाने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए मैं कोर्ट जा सकती हूँ, लॉ मेरी हेल्प करेगा। कानून, जुरिस्डिक्शन जो इंडिया का है, दैट विल हेल्प मी। क्लियर है? हाँ जी मैम। गाइस आप लोगों को बोलना पड़ेगा, इफ आई एम आस्किंग समथिंग यू शुड एटलीस्ट से यस नो बेबी। इट इज ओनली प्राची जो क्लास में है जो सिर्फ मुझे यस बोल रही है, बाकी सब 10 बच्चे नहीं है क्लास में। एवरीबडी शुड से यस नो, या तो समझ आ गया तो यस, नहीं समझ आया तो नो बोलोगे आप कि मैम दोबारा बताएं। Yes, ma'am. आ गया. Yes, ma'am. Great. Okay, so I should Yes, also ma'am. I should also be understanding that okay, somebody is listening to me and I am actually teaching to some people and not to the ones who can't speak or can't hear. Okay? तो कोई भी चीज, कोई भी एक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है, एग्रीमेंट कोई एक रिटन चीज है, रिटन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, और वो होता है एग्रीमेंट, दो पार्टीज के बीच में साइन होता है। दो पार्टीज, एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है, बट कॉन्ट्रैक्ट जनरली इज बिटवीन टू पार्टीज। एक पार्टी उसमें कुछ ऑफर कर रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस के ये रहेंगे, हम इस तरह से काम करेंगे, मैं ये करूंगा, तुम ये करोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर रहा है और वो भी साइन कर रहा है, दोनों ने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, अपने अपने ऑब्लिगेशंस को। म्यूचुअल का मतलब होता है मिलके, दोनों लोगों ने म्यूचुअली, यानी कि दोनों ही उन सब बातों पे अग्री हैं सेम तरह से म्यूचुअली, और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए। सो दैट बिकम्स एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस ही यही है। अग्रीमेंट का मतलब हो गया, मैंने आपको कुछ बोला, हाँ ठीक है ओके, आपने कुछ बोला, हाँ ठीक है ओके, जैसे मैंने आपको कुछ बोला, आपने सबने यस बोला, हाँ जी हम समझ आ गया, ये हो गया अग्रीमेंट। मैंने आपको कुछ बताया, आपने मुझे कुछ बोला, यस बोल दिया, हाँ जी आपको समझ आ गया, ये हो गया अग्रीमेंट। ठीक है, अभी ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अगर मैंने इस चीज को, मैं कि आदित्य ने मुझे यस बोला या मुझे प्राची ने यस बोला, है ना, किसी ने यस बोला और ये काम करने के लिए और फिर किया नहीं, तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मैं ये जाकर कोर्ट में नहीं कह सकती कि भाई इस पर्सन ने मुझे ऐसे हाँ बोला था, अब देखो ये नहीं कर रहा है काम। सो अग्रीमेंट इज समथिंग विच इज लाइक जस्ट एन एग्रीमेंट, कि दो लोग ने अग्री करा कोई बात पे, लेकिन जब हम उसको रिटन में लाके साइन करते हैं और उस पर लिखते हैं कि दिस एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि अब वो पेपर को हम कोर्ट में ले जाकर उस पर काम कर सकते हैं। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये हो गया कि लॉ की हम कोई हेल्प ले सकते हैं। हमारा जो लॉ है, कानून है, कोर्ट आपने देखा होगा प्रूफ्स पे काम करता है, और सुनी सुनाई बातों पे जिसका कि कोई प्रूफ नहीं है उस पर बिलीव हम नहीं करेंगे। कोर्ट में चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी आकर, चाहे पीएम मोदी जाकर कोर्ट में बोल दे कि हाँ इस आदमी ने मुझे 2 साल पहले ऐसे कुछ बोला था, उस बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रूफ अगर नहीं है तो। ठीक है, सो एनफोर्सेबल एनी एग्रीमेंट विच वी वुड वांट
and which is enforceable by law, that becomes contract. समझ आ गया? कोई भी एक एग्रीमेंट जो दो पार्टीज के बीच में साइन हुआ है और वो enforceable by law भी है तो ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. Basic elements required for the agreement to be legally enforceable contract are mutual assent, यानी कि दोनों लोग म्यूचुअली, जो पार्टीज हैं दोनों अग्री करेंगे, म्यूचुअली अग्री करेंगे. एक्सप्रेस्ड बाय अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो ये ब्लू में अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये बेसिकली इंपॉर्टेंट या एक तरह से यू कैन से कंटेंट द एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक आदमी उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर करता है. ऑफर करता है का मतलब वो इनिशिएट कर रहा है, प्रपोज कर रहा है कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, काम करेंगे हम, इस तरह से बैठ के काम करेंगे. दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्टेंस भी जरूरी है. कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ऑफर बना दिया, मैं आप लोगों को भेज रही हूँ और आप लोगों ने उसके ऊपर अगर कोई रिप्लाई ही नहीं करा है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, यानी कि आप लोगों ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है. एडिक्वेट कंसिडरेशन, सो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में क्या हम पढ़ रहे हैं, मेन पॉइंट्स, ये सारी चीजें अगर आप इलैबोरेट करके लिखेंगे तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा. अगर आपका कोरोना का ही प्रॉब्लम चलता रहा और आपका टेस्ट एमसीक्यूज के थ्रू हुआ तो इजी है, वरना अगर आपका जैसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं तो आपको लिखना अगर पड़ेगा तो ब्रॉड ये पॉइंट्स हैं जो आप एक्सप्लेन करोगे. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, म्यूचुअल एक्सेंट होता है, एक बंदा ऑफर करता है दूसरा एक्सेप्टेंस करता है, तो एक्सेप्टेंस एंड ऑफर, दीज बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. उसके अलावा एडिक्वेट कंसिडरेशन, कैपेसिटी एंड लीगैलिटी. कैपेसिटी, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मुझे बोला जा रहा है कि तुम ये काम करोगी 2 घंटे के अंदर काम करोगी, मेरी कैपेसिटी नहीं है 2 घंटे के अंदर वो काम करने की, या वो पॉसिबल है ही नहीं काम 2 घंटे में करना, तो क्या हम उसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझसे कोई बोले कि यू विल हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली टू से वट एवर डिस्टेंट प्लेस पे, कोई बोलता है आपको, सपोज आपको मुंबई आना है in just 1 hour, so is that possibly correct? Is that possible? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, किसी की भी कैपेसिटी में नहीं है कि दिल्ली से मुंबई 1 घंटे में कोई पहुंच जाए, किसी भी तरह से पहुंच जाए. तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी लो, सपोज 2 लोगों ने साइन कर भी दिया, उसने बोला हाँ पहुंच जा, मैंने बोला हाँ ठीक है पहुंच जाऊंगी, साइन भी हो गया, तो क्या वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा? No, because that is not capacity, that is not basically the capacity of any person, और practically possibility ही नहीं है उस चीज की. So we will understand that also law वहीं पर उसी चीज में हेल्प करेगा जो पॉसिबल है लीगली, पॉसिबल है प्रैक्टिकली. उन चीजों पर जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हवा में बातें हो रही हैं, चाहे वो पेपर पे 2 लोगों ने साइन कर भी दिया फिर भी उसमें कोर्ट क्या हेल्प करेगा, राइट? तो कैपेसिटी एंड लीगैलिटी, वही चीज की ये पर्टिकुलर चीज लीगैलिटी इसकी है या नहीं है. फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, एक 2 पर्सन में साइन हुआ, somebody would want to kill somebody, तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके किसी दूसरे पार्टी को दिया कि तू उस पर्सन को मेरे लिए मार देना, यू जस्ट किल दैट पर्सन, हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, आई विल गिव यू दिस पर्सन दिस मच अमाउंट. क्या अगर वो पर्सन मेरे लिए काम नहीं करता जो मैंने उसको कहा, तो मैं लॉ कोर्ट में जा सकती हूँ इस चीज के लिए कि देखो जी मैंने, No, ma'am. राइट? No, ma'am. Yes. Why? Because that is not legal. The thing of or the content of the contract is not legal. Legality point समझ आ रहा है? फोर्थ लाइन में legality फर्स्ट वर्ड. सो लीगैलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ भी लिख रहे हैं तो ऐसा ही कुछ भी नहीं लिख देंगे which is not practical or which is not legally correct. So we have to, these are all content. समझ आ रहा है? लॉ, कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है वो ये सब कह रहा है कि ये सारी चीजें कंटेंट होनी चाहिए. 2 पार्टीज होंगी, दोनों का म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा. सिर्फ एक पार्टी कह रही है हाँ ठीक है ओके, दूसरा पार्टी एग्री नहीं कर रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. दोनों अग्री कर रहे हैं म्यूचुअली, एक दे रहा है ऑफर, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है. कैपेसिटी में होना चाहिए उस पर्सन के वो काम करना, लीगल भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कुछ भी काम कर रहे हो गलत और वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उसके बाद लॉ के पास चले गए, लो जी मैंने इसको पैसे दे दिए थे, इसने साथ में को मारा ही नहीं, अब क्या करेंगे? सो लीगैलिटी has also to be checked. In some states, elements of the consideration can be satisfied by a valid substitute.
possible remedies for breach of contract and include general damages, consequential damages, reliance damages and specific performance. बहुत बार क्या होता है इस पर्टिकुलर वर्ड से, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रही हूँ, अभी तक हम सिर्फ एक पैराग्राफ को कवर किया है, बट मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी आपको हर चीज़ इतना डिटेल में, ऑल्दो आई विल कवर एवरीथिंग, बट इतना डिटेल में मैं आपको हर चीज़ इसलिए नहीं समझाऊंगी क्योंकि जब आपको ओवरव्यू समझ आ जाएगा इस पैराग्राफ को जैसे आपने पूरा समझ लिया ना, तो समझिए कि आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आप समझिए आपने टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ। आगे हमने यही पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में ये सब पॉइंट्स बता रही हूँ। पॉसिबल रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तो हो गया हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कब जाएंगे, एनफोर्सेबल बाय लॉ जो पहली लाइन में हमने पढ़ा है जो कि हम कोर्ट जा सकते हैं, वो तभी जाएंगे जब उस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट की हैं उसमें से किसी एक पार्टी ने वो कोई भी टर्म या कंडीशन को फुलफिल नहीं किया या फॉलो नहीं करा। ठीक है, उसमें लिखा था कि सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस है कि इफ इट विल वर्क ऑन सो एंड सो डेट्स, इसने इतने घंटे काम करेगी, सपोज दैट इज द पार्ट ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और इफ नहीं करेगी so she has to inform, she has to follow this process, she has to give in written a day prior or same day or something like that। मैंने वो नहीं करा तो यानी कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, नाउ व्हेन एनी पार्टी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एक पार्टी हो, चाहे वो जिसने ऑफर दिया वो, चाहे वो जिसने एक्सेप्ट किया वो, either of the parties, nobody can breach the contract, and if some party breaches the contract, the other party can reach the court, दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट की साइंड कॉपी को लेके, मतलब वो ऑफ कोर्स अपना कैसे जाएगी, अपना कोई लॉयर करेंगे, लॉयर हु आर बेसिकली द फाइटर्स हु जनरली फाइट इन द कोर्ट एंड दे जनरली टेक द केस अप इन फ्रंट ऑफ द जज कि देखो ये मेरा क्लाइंट है, इसने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इस पार्टी के साथ, दूसरी पार्टी ने इसकी बात को अग्री नहीं किया, ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच कर दिया तो क्या क्या उसके फायदे क्या है, मतलब मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा, पैसे मिलेंगे, या उस पर्सन को कुछ पनिशमेंट मिलेगी, जो भी हमारा फेल्योर का कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो दूसरी पार्टी को करने पड़ेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हमें सीधे जाकर कोर्ट जाना पड़े, क्या पता आप दूसरी पार्टी से बात करो, बात करके वो रेडी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे इतने पैसे दोगे, इतने टाइम पर दोगे, तुमने नहीं दिया तो मैंने उससे बात करी कि तुमने ब्रीच करा है कॉन्ट्रैक्ट, अब बताओ इतना टाइम में तुम्हें पैसे देने थे, तुमने नहीं दिए हैं, नाउ व्हाट। सो वो या तो पैसे दे दे विद इंटरेस्ट विद व्हाटएवर डैमेज यू आर आस्किंग, या फिर भाई तुम कोर्ट जाओगे, दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इन ऑर्डर टू यूज द टर्म इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि यू विल बी गोइंग टू लॉ ओनली व्हेन देयर इज सम ब्रीच। अगर सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा कि साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, काम दोनों का ही हो रहा है, म्यूचुअली हो रहा है, अग्री हो रहा है। ठीक है, कुछ भी जनरली डैमेजेस अगर होते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था हम ऐसे नहीं ऐसे काम करेंगे, अब हम ऐसे नहीं किसी और तरह से काम करने लगे, जिसकी वजह से किसी दूसरी पार्टी को, एक पार्टी ने सपोज अपना कुछ तरीका बदल दिया व्हिच वाज नॉट देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से दूसरे पर्सन को अगर कुछ डैमेज हो रहा है, किसी भी तरह का डैमेज, जनरल डैमेज हो, कंसिक्वेंशियल मतलब जो कि जिसका रिजल्ट डैमेजेस में आए, किसी भी तरह का डैमेज, या दूसरे पर्सन की परफॉर्मेंस कम हो रही है सपोज, वो भी डैमेज है ना, कुछ भी तरह का डैमेज हो तो वो दूसरी पार्टी से बात कर सकता है कि दिस इज नॉट आवर टर्म या कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन नॉट डू दिस टू मी। क्लियर है? सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या हो गया, अग्रीमेंट विच इज साइन बिटवीन टू पार्टीज, म्यूचुअल कंसेंट होएगा, म्यूचुअल अग्रीमेंट होगा, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा दूसरी पार्टी का, कैपेसिटी में होना चाहिए वो जो भी चीजें हम अग्री कर रहे हैं, दोनों पार्टीज के बीच में साइन हो रहा है कुछ भी, लीगैलिटी दैट शुड ऑल्सो बी लीगल एज पर द लॉ, वो चीज खुद ही पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए या इलीगल नहीं होनी चाहिए, और हम साइन भी कर रहे हैं तो फिर वो हम एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं कहेंगे, हमारे लॉ ने कोई चीज बोल रखी है कि ये काम तुम्हें नहीं करना और तुम वही काम का कॉन्ट्रैक्ट करके लॉ के पास जा रहे हो कि देखो मैंने साइन करा था, इससे काम इसने नहीं करा, तो ऑब्वियसली हमारा अगेंस्ट एक्शन होगा एंड नॉट the other part towards the other party who has breached the contract. Clear है? Yes, ma'am. Okay, so the contracts are basically the promises that the law will enforce. Contracts basically एक promise होते हैं जो कि जिसको complete करना या follow या implement करवाना is the duty of the law. Third, fourth, BB fourth.
So contract law is generally governed by the state common law, and while general overall contract law is common throughout the country, some specific court interpretations of a particular element of the contract may vary between states. अब देखिए, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट. देयर आर सर्टेन लॉज विच आर बीइंग गवर्न्ड बाय द सेंट्रल लॉ और द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज इम्प्लीमेंटेड टू द एंटायर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट. कि कौन सी स्टेट है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, कोई भी स्टेट है, इफ इट इज द पार्ट ऑफ द कंट्री, सेंट्रल लॉज जो फॉर्मुलेटेड हैं वो सब पर एप्लीकेबल होते हैं. बट देर आर सर्टेन लॉज विच आर लाइक डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ऐसा होता है कि किसी एक स्टेट ने कोई लॉ बनाया और वो सिर्फ अपनी स्टेट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है और उसके पास अथॉरिटी सिर्फ अपनी स्टेट को चलाने की है, तो दूसरी स्टेट में वो नहीं लगा सकती है वो लॉ. तो कुछ स्टेट के लॉज भी होते हैं जो स्टेट वाइज डिफरेंट होते हैं, डिफर करते हैं. सो देन वी विल हैव टू सी कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में साइन कर रहे हैं, सपोज हरियाणा में कर रहे हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कहती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए. क्या ऐसा कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हरियाणा गवर्नमेंट रिसेंट पास में कुछ अमेंडमेंट के लिए तो नहीं डाल दिया कि हम अब से सपोज कोई हरियाणा का सपोज सीएम है या कोई लॉ ऐसा पास कर देते हैं वो लोग कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड नहीं समझेंगे, या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब हम एडिशनल कोई एक, उन्होंने सपोज कुछ एक पॉइंट डाल दिया जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, तो क्या वो इस ये स्टेट से हमको मिल पाएगा इसका जस्टिफिकेशन, जस्टिस मिल पाएगा हमको. सो दैट इज ऑल द थिंग्स विच वी हैव टू टेक केयर कि हम किस स्टेट में क्या ऑपरेट कर रहे हैं और उस स्टेट का लॉ क्या कहता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए. और चीज क्या है वो बेसिकली अभी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है. For promise is breached, the law provides remedies to the harmed party, often in the form of monetary damages or in limited circumstances in the form of specific performance of the promise made. Promise का मतलब होता है किसी को कोई अपनी, बोलते ना हम हिंदी में कि मैंने इसको अपनी जबान दी हुई है कि मैं तो ये काम करूंगा ही, अब मैंने इसको ऐसा बोल दिया कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी तो मुझे करना है. So that is promise. There are few people who do not keep their words. जो बोल देते हैं करते नहीं है काम. वो मैंने बोल दिया था भूल गई, या मैंने ऐसे ही बोल दिया था, है ना. बट सामने वाले पर्सन ने अगर कुछ आपके प्रॉमिस को सही समझ लिया तो उसने तो अपनी प्लानिंग आपके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग कर ली. अब आपने वो प्रॉमिस नहीं फुलफिल किया तो उसको कुछ ना कुछ डैमेज हुआ होगा. वो डैमेज अपना वो अब क्लेम कर सकता है कोर्ट से, क्योंकि आपने अपने वर्ड्स या प्रॉमिस को ब्रीच कर दिया. ठीक है. तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई पूछे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, any law which is applicable on the contracts while the contract is breached is law of contract. ठीक है. और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. with any agreement which is signed between two parties and which is enforceable by law is a legal contract. Sorry. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली इज, या ये मीनिंग हो गया इसके बारे में. नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड नहीं है तो हम वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, या फिर वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है. तो वो वैलिड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कंटेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, इज what we will be studying in the contents of a valid contract or the elements of the valid contract. जो हमने ऊपर अभी पैराग्राफ में पढ़ा है ये 2-3 पॉइंट्स सेम ही हैं. बेनिफिट डेट्रीमेंट थ्योरी के हिसाब से क्या होता है और बार्गेन फॉर द एक्सचेंज थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए. मेन एलिमेंट्स यही हैं, कंसिडरेशन एंड म्यूचुअल एक्सेंट. म्यूचुअल एसेंट या एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं, या म्यूचुअल अग्रीमेंट. दोनों पार्टीज सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री कर रही हैं. अगर एक भी टर्म और या कंडीशन को अग्री नहीं किया है contract के, so then we will not be able to better 2 minutes, just wait there only at the reception, here only you can wait. Sorry. So then basically those elements, if all those valid the elements of the valid contract are not there in the contract, then वो enforceable by law नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट में हमने ऐसा कुछ साइन किया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की बात करते हैं. आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलते हो, आप अपॉइंट होते हो कहीं पे, ज्वाइन करते हो. अगर उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म ऐसी है जिसमें कि सिर्फ एक पार्टी को लॉस हो रहा है दूसरी को नहीं हो रहा,
तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे कि मालिक ने बोल दिया कि मैं तो निकाल सकता हूँ मगर ये छोड़कर नहीं जा सकता एम्प्लॉय, तो देन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसको मैं अभी क्लोज करती हूँ एक बार। विल टेक दी फर्दर थिंग्स फ्रॉम दी नेक्स्ट लेक्चर। आई होप एवरीथिंग टुडे वी डिस्कस इज क्लियर। फिर भी किसी को कुछ क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ भी माइंड में आता है, प्लीज टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई विल जस्ट टेक दैट अप। प्लीज डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मी, ओके गाइस। तो ओके मैम। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा मैं कल हम लोग पढ़ते हैं, कल या नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग। गुड लक टू यू गाइस। बाय बाय। थैंक यू ओके मैम, बाय मैम। मैम। ओके मैम।